वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज 8 लेक्चर रिलीज़ करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो केमिस्ट्री की क्लासेस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, टिप्स ट्रिक्स और सारे चीज़ को कॉम्पैक्ट वे में दे रहा हूँ, जो कि कमेंट्स भी आया है हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स का कि ये मेथड कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो आज फाइनली मैंने इस केमिस्ट्री के क्लासेस का नाम रखा है अल्टीमेट केमिस्ट्री चैनल। तो अब आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करना अल्टीमेट केमिस्ट्री चैनल। सो वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री चैनल। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब H2SO4 आता है तो इसका क्या रोल है, इसका क्या यूज़ है। आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि किसी रिएक्शन में जब सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो टुडे वी विल डिस्कस रोल ऑफ sulfuric acid. So first we will discuss role of concentrated H2SO4 and P2O5. P2O5 को हम साथ में इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि P2O5 is also used as dehydrating agent, and as you know concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent. Sorry, this P2O5 is dehydrating agent and conc H2SO4 is a good dehydrating agent, so it removes water molecule. So whenever we use concentrated sulfuric acid, at the place of concentrated sulfuric acid you can use phosphorus pentaoxide P2O5 as dehydrating agent. So first one, when alcohol reacts with conc H2SO4, dehydration process takes place and alkene is obtained. For example, if you take ethanol, when it reacts with conc H2SO4 it forms ethene. If you take propane 1-ol, when it reacts with conc H2SO4 it gives propene. But when it reacts with butane 2-ol, so it gives a mixture of but1-ene and but2-ene. So according to Sitjev's rule, you will get the major product as but2-ene. At the place of conc H2SO4 you can use P2O5 as well. Second one, if we take carboxylic acid, but before going to carboxylic acid I would like to explain you the different temperature at which only ethanol gives different product. When ethanol reacts with conc H2SO4 at 100 degrees Celsius temperature, second one 140 degrees Celsius temperature, and third one at 170 degrees Celsius temperature. So at 100 degrees Celsius temperature, ethanol with conc H2SO4 gives ethyl hydrogen sulfate CH3CH2HSO4. But when it reacts with 140 degrees Celsius it gives diethyl ether CH3CH2O CH2CH3. And when it reacts with 170 degrees Celsius temperature it gives ethene. So now you can ask, sir, जब एग्जाम में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहेगा, मेंशन नहीं होगा, तो हम क्या प्रोडक्ट लिखेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके इथीन प्रोडक्ट लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2. सेकेंड वन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद conc H2SO4 it gives anhydride as product. For example, if you take RCOH general form in presence of conc H2SO4 it gives RCOOCOR and water is removed. For example, if you take ethanoic acid you will get ethanoic anhydride. But if you take formic acid, in case of formic acid removal of water molecule takes place and you will get CO, carbon monoxide plus water. And if you take oxalic acid, dicarboxylic acid, HCOCCOH or ethane 1,2-dioic acid, so it gives CO plus CO2 plus H2O. And most importantly, when C12H22O11, that is cane sugar or sucrose, when it reacts with conc H2SO4 you will get carbon black plus H2O. So this process is also known as sharing, CHARRING. इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से लो। जब हम लोग मान लो कि किसी चीनी को किसी बॉल में रख दो आप और उस पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो conc H2SO4 तो उससे आवाज़ आती है और वो जो चीनी है वो
ब्लैक कलर में दिखता है हमें, और वाटर जो है इवॉपरेट हो जाता है। सो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कई बार आप देखते हो एसिड अटैक में यदि किसी के ऊपर हम फेस पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो पूरा स्किन जो है वो जल जाता है, मतलब पूरा बर्निंग, बहुत सीवियर बर्निंग होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर रिमूव कर लेना, है ना। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड को पहले जैसे हम कॉमनली हर एक जगह बेचते थे दुकान में, वैसे नहीं बेच सकते। उसके लिए दुकानदार के पास लाइसेंस होना चाहिए, और कई बार मतलब ये सजेस्ट किया जाता है कि जब तक 18 ईयर्स से कम का है तब तक आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बेच सकते हो। तो यहाँ हम लोग लैबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन कुछ जगह आप देखोगे कि P2O5, जहाँ हमने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया वहाँ हम P2O5 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कंबाइंड स्टेट से वाटर रिमूव करना होता है, जैसे एसिड अमाइड है और एल्डोक्सिन्स है, तो वहाँ हम कॉन्क H2SO4 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कंबाइंड स्टेट से मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से वाटर रिमूव नहीं होता है। तो वहाँ हम P2O5 यूज़ करते हैं। इट इज़ ए पावरफुल and it is more powerful dehydrating agent than conk H2SO4. So if you take RCONH2, that is amide, when it reacts with P2O5 it gives RCN plus H2O, साइनाइड बनता है। और जब हम एल्डोक्सिन्स लेते हैं, एल्डोक्सिन्स RCH डबल बॉन्ड NOH, तो जब इसका रिएक्शन P2O5 से करते हैं तो RCN बनता है, साइनाइड बनता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। इसमें हम लोगों ने कॉन्क H2SO4 और P2O5 को यूज़ किया, तो इसमें 4 कैटेगरी ऑफ रिएक्शन आया। पहला हुआ कि अल्कोहल से कॉन्क H2SO4 वाटर रिमूव करता है, एसिड से वाटर रिमूव करता है तो अल्कोहल से एल्कीन बनता है, एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनता है। और जब अमाइड का रिएक्शन करते हैं P2O5 से तो साइनाइड बनता है। एल्डोक्सिन्स का रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनता है। कीटोक्सिन्स के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कीटोक्सिन में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए P2O5 वाटर रिमूव नहीं कर सकता। चूँकि हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सेकेंड कैटेगरी रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करते हैं। जब एल्काइन रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ 20% H2SO4 एंड 1% Hg2 प्लस सॉल्ट के प्रेजेंस में, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, और इनॉल प्रोडक्ट बनेगा जो फिर टोटोमराइज होके मतलब रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो एल्डिहाइड केवल इथाइन बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ 20% H2SO4 एंड 1% Hg2 प्लस सॉल्ट, सो इट फॉर्म्स CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और फिर जो है ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो चला आता है इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड H, इथेनॉल बनता है। एंड ऑल अदर एल्काइन एक्सेप्ट इथाइन गिव्स कीटोन। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ 20% H2SO4 एंड 1% Hg2 प्लस सॉल्ट, ये बनाएगा CH3 बॉन्ड CHOH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्या होगा कि ये हाइड्रोजन चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सो ओनली इथाइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स इथेनॉल एंड ऑल अदर एल्काइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स कीटोन। फिर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये 12th क्लास के लिए भी यूज होता है, बोर्ड में भी पूछता है, और 12th क्लास के बच्चे भी इसको साथ साथ पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये सीरीज स्पेशल है ही, लेकिन 12th क्लास के बच्चों को लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं कॉन्क H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो इस पर पैराल्डिहाइड बनता है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एट रूम टेम्परेचर इट फॉर्म्स CH3CHO होल थ्राइस। इसका कॉमन नेम है पैराल्डिहाइड, या दूसरा नाम इसका है 2,4,6 ट्राईमिथाइल 1,3,5 ट्राईऑक्सेन। और जब 4 मॉलिक्यूल इथेनॉल का रिएक्ट करता है कॉन्क H2SO4 के साथ -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इस पर बनेगा मेटाल्डिहाइड CH3CHO 4 टाइम्स। और जब एसीटोन का रिएक्शन करते हैं हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ CH3CO CH3 3 मॉलिक्यूल, तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है इसमें, और ये बनता है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन कॉमन नेम है। बेंजीन रिंग पे 3 CH3 ग्रुप होता है 1,3,5, तो इसका आयुपेक नेम होता है 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, और इसको हम लोग मेसिटिलीन भी कहते हैं।
उसके बाद देखो, जब हम कॉन्क H2SO4 की बात कर रहे हैं तो कुछ और एक दो एग्जाम्पल देते हैं आपको, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये पर्पस है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक जगह दे दूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत चैनल में या जो क्लासेस YouTube प्रोवाइड होता है, तो मैंने कोशिश किया कुछ देखने का। तो इस तरह से, जैसा मेरे स्टूडेंट ने भी सजेस्ट किया, मैं जब पढ़ाता था, तो ये काफ़ी यूनिक मेथड है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, क्योंकि जब आप डिस्कस करोगे तो दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। और हर एक जगह बताओ, इसको आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं मेहनत करके काफ़ी जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये पर्पस नहीं है कि केवल वीडियो ऐसे बना दिया, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये द बेस्ट हो, अल्टीमेट हो, ताकि स्टूडेंट को इसमें बेनिफिट हो विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब हर एक स्टूडेंट जो एफर्ट नहीं भी कर सकता, क्वालिटी एजुकेशन, आपको पता ही इंस्टीट्यूट वगैरह में काफ़ी पैसे पे करने होते हैं, बुक्स में इस तरह से कॉम्पैक्ट करके चीज़ नहीं दिया हुआ। तो मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो। इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह यूनिक मेथड से आपके सामने प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ताकि रियली इससे बेनिफिट हो स्टूडेंट को, और जब वो इस वीडियो को पढ़े तो उसको फ़ायदा हो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो उसी क्रम में मैं कुछ और रिएक्शन इसमें कवर करता हूं, ताकि वो नीट में या जो एम्स का पेपर होता है या फिर IIT एडवांस लेवल में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगा, जो स्पेशली उसी के लिए होता है। जैसे आप लोग साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन जब हम एजाइड के साथ करते हैं, N3H के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कैप्रोलैक्टम बनता है। जैसे आपको पता है कैप्रोलैक्टम का फिर आप यूज़ करोगे पॉलीमर में, जहाँ नायलॉन 6 बनता है, तो वहाँ ये क्या होता है, मोनोमर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जब फिनॉल का रिएक्शन हम कॉन्क H2SO4 के साथ करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। मतलब फिनॉल और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे SO3OH ग्रुप आएगा। लेकिन यही टेम्परेचर यदि 100 डिग्री हो जाएगा, फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो वहाँ पैरा प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। तो जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो 1,2 पोजीशन पे प्रोडक्ट बनता है, और जब 100 डिग्री पे करते हैं तो 1,4 पोजीशन पे ये प्रोडक्ट बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने सारे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितना भी आपके लिए यूज़फुल है 12th क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट, IIT मेंस और एडवांस के लिए, तो मैं सारे रिएजेंट को एक जगह डाल रहा हूँ, ताकि वो काफ़ी यूज़फुल हो आपके लिए। और अब से आप क्या करोगे, ये जो चैनल है वो अल्टीमेट केमिस्ट्री चैनल है, इसी नाम से मैं सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। सो प्लीज़ शेयर, view and subscribe and do best for your competitive exam. Thank you. Thanks a lot.